Hello students, today we discuss invertible functions. Invertible functions or inverse of a function. So a function f, write a definition. If a function f such that a to b, a function f a to b is said to be invertible, is defined as invertible, if there exists another function g from b to a, if there exists another function g from b to a such that gof is equal to identity function on a and fog is equal to identity function on b, then we can say that g is the inverse of f. Then we can say g is inverse of f or f is invertible. Then g is inverse of f, or you can write f inverse is equal to g, or we can say f is invertible function. So for invertible function we assume that a function f from a to b, f एक function है वो कहाँ है a से b में है, is defined to be invertible. ये invertible होगा when we find, अगर कोई ऐसा function हम find कर ले g या function जो exist कर रहा है b to a, वो function कहाँ है b to a, such that gof g of f is equal to identity function on a, or you can say image, we get image of a. Image of a is a, and fog is equal to identity function on b. Then we can say g is inverse of f. For this purpose, function f must be 1 1 and onto. फंक्शन को 1 1 और onto होना पड़ेगा इन्वर्टिबल होने के लिए. Function must be 1 1 and onto. So if a function is invertible, it must be 1 1 and onto, and if a function is 1 1 and onto, it must be invertible. Both are true. So if function is invertible, then it must be 1 1 and onto. It must be 1 1 function and it must be onto function, vice versa. Or you can say if a function is 1 1 and onto both, it must be invertible and its inverse exists. प्रूफ करने के लिए इसका यूज करेंगे कि हम 1 1 और onto अगर किसी फंक्शन को प्रूफ कर देते हैं, it means वो इन्वर्टिबल है. अगर क्वेश्चन ये है कि चेक दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल, तो क्या करेंगे, फंक्शन को 1 1 onto प्रूफ कर देंगे तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. अगर इन्वर्टिबल है और इन्वर्स पूछ रहा है कि इन्वर्स क्या है, तो हम एक ऐसा फंक्शन फाइंड करेंगे such that gof is equal to identity function on a or first set and fog is equal to identity function on b or second set. अगर ऐसा मिल रहा है तो फिर g f का इन्वर्स है. नोट इट डाउन. एक एग्जांपल से इसको थोड़ा समझते हैं. Examples is, let f such that n to 1, f such that n to 1 is a function defined as fx is equal to 4x plus 3, where y is equal to, now y क्या है, y is equal to, y belongs to natural number such that y is equal to 4x plus 3 for some x belongs to natural number. Show that f is invertible and find the inverse.
इसको इन्वर्टिबल शो करना है और इसका इन्वर्स फाइंड करना है। दो मेथड ऑप्ट करेंगे। फर्स्ट मेथड से चेक करते हैं उसको। फर्स्ट लेट y is equal to 4x plus 3. Y is equal to 4x plus 3. Now find the value of x. So y minus 3 upon 4 is equal to x. 3 इधर आया माइनस हो गया, 4 अपॉन में गया, तो y minus 3 upon 4 is equal to x. अब हम एक फंक्शन g एज्यूम कर लेंगे such that g of y is equal to y minus 3 upon 4. g of y is y minus 3 upon 4. fx is equal to 4x plus 3. g of y is equal to y minus 3 upon 4. Now find fog and gauge. So first gauge. What is gauge? Gauge is g of fx. Now what is fx? Fx is 4x plus 3. Now how can g function is defined? G is defined as y minus 3 by 4. So we put this value in place of y. So 4x plus 3 minus 3 by 4. This 3 is cancelled. Now 4x upon 4, or we get x. Or we get x. Or what is x? X is identity function on x. We can write as identity function on x. Not x, n. And first set is n. Now we find gauge. Gauge is already done. We find fog. Fog is f of gy. And what is gy? Gy is x y minus 3 by 4. Now f of x is defined as f 4x plus 3. So put this value in place of x. We get 4 multiplied by y minus 3 by 4 plus 3. 4 is cancelled. Y minus 3 plus 3. 3 is again cancelled. We get y. And y is a member of second. So image of y. Now gauge is the identity function on first set. And fog is the identity function on second set. So we can say that g of y is the inverse of x, or g is the inverse of f, or f inverse is equal to g, or f inverse of x is equal to what is g function? What is g function here? G function is y minus 3 by 4. Or we can replace this y by x, so we can write as x minus 3 by 4. This is the inverse of f function. This is the one way. Here we have to assume a function g function हमने assume किया, और वो g function फाइंड कहाँ किया? इसी x फंक्शन से फाइंड किया और चेक कर लिया जो हमारी प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी क्या है? gauge is equal to identity function on n and fog is equal to identity function on y, और हमको मिल गया कि g f का इनवर्स है। दिस इज द वन वे। सो अगर हम इतना प्रूफ कर देते हैं कि gauge is equal to identity function on x and fog is equal to identity function on y, so f is must be 1 1 and on 2, f 1 1 on 2 है। अगर सिर्फ इसको इन्वर्टिबल चेक करना है, क्वेश्चन को सिर्फ ये चेक करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो उसके लिए हम मेथड क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम पहले इसको 1 1 और on 2 चेक करेंगे। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। उस मेथड में क्या करेंगे? पहले 1 1 चेक करेंगे। तो फॉर 1 1 let fx1 is equal to fx2. So 4x1 plus 3 is equal to 4x2 plus 3. That 3 is cancelled out. 4x1 is equal to 4x2. That 4 is cancelled out. x1 is equal to x2. Now function is 1 1. Hence
1 1, फंक्शन 1 1 है। फॉर ऑन टू के लिए भी एज्यूम लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। y को एक नंबर है डोमेन, कोडोमेन में, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि y को एक नंबर कोडोमेन में है और वो हमने एज्यूम कर लिया y, तो वो किसके इक्वल होगा, 4x प्लस 3 के इक्वल होगा। फ्रॉम हियर वी गेट x इज इक्वल टू y माइनस 3/4। हेंस फॉर एवरी y in codomain there exists a x in domain by the definition of function, by the definition of function. For every y in codomain there exists x in domain. फंक्शन डिफाइन कैसे, y इसने क्या लिया, y सेट जो है, जो सेकंड सेट लिया है, इसमें बोल रहा है कि y एक नंबर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। मतलब ये फंक्शन जब हम x पर अप्लाई करेंगे तो जो बात मिलेगी वही कोडोमेन में है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब कहने का, इसका मतलब ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर के सेट में देयर आर इनफाइनाइट मेनी नंबर्स। अब ये सेट इसने y लिया है और उस y को कैसे डिफाइन किया, y को डिफाइन किया 4x प्लस 3। मतलब आप 1 लीजिए, यहाँ पुट करिए, जो मिलेगा वो यहाँ रख दीजिए। आप 2 लीजिए, यहाँ पुट करिए, जो मिलेगा वो यहाँ रख दीजिए। सो 1 to 1 मैपिंग ही होगी, 1 to 1 मैपिंग ही होगी। और फॉर एवरी x देयर इज अ y, देयर इज अ y, सो फॉर एवरी y देयर इज अ x इन डोमेन। कोई भी y हम कोडोमेन मिलेंगे उसके लिए वापस हमें x मिलेगा, क्योंकि हमारी इसकी फंक्शन की डिफिनेशन क्या, फंक्शन की डिफिनेशन के हिसाब से हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 into 1 1 plus 3 7, 2 ले लेंगे 8 11। तो फॉर एवरी x, फॉर एवरी नेचुरल नंबर देयर इज अ डिफरेंट नंबर इन कोडोमेन, या और कोडोमेन भी अलग से डिफाइंड नहीं है, वो वही y सेट है जो हमें यहां से मिल रहा है, इसके अलावा और कोई मेंबर इसमें नहीं है। सो फॉर एवरी y इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ x इन डोमेन, तो उस यहां पर डोमेन में वो x एग्जिस्ट करेगा। इट मींस ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। जब ये 1 1 और ऑन टू है तो हम बोल देंगे हेंस फंक्शन इज इनवर्टिबल, सिंस f is 1 1 and onto, hence it is invertible। अब फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, ठीक। अब इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, यहां तक हमने फंक्शन को इन्वर्टिबल कर दिया, 1 1 प्रूफ कर दिया, ऑन टू प्रूफ कर दिया। फंक्शन 1 1 है, फंक्शन ऑन टू है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट करने के बाद इनवर्स फाइंड करने का क्या तरीका, इनवर्स फाइंड करने के लिए ये जो x की वैल्यू आई है इसी को हम g फंक्शन एज्यूम कर लेंगे और एज्यूम कर लेंगे लेट g सच दैट y to n, g हमने फंक्शन में एज्यूम कर लिया g y to n एंड gy is defined as g of y is defined as y minus 3 by 4। g of y is defined as y minus 3 by 4। जो फंक्शन यहाँ जो x की वैल्यू मिलेगी हमेशा वही हम g के लिए एज्यूम करेंगे, g फंक्शन उसी के साथ एज्यूम करेंगे। देन फाइंड फॉग एंड गॉफ, ये ऑलरेडी हम भी कर चुके हैं, हमने फॉग का फाइंड किया था, हमने गॉफ फाइंड किया था, और ये वैल्यू क्या सेम फंक्शन के साथ, और ये वैल्यू हमें क्या मिली थी, इमेज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y एंड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन नेचुरल नंबर, दैट इज फर्स्ट। So we can say G is the inverse of F। इतना काम करने के बाद हम ये काम दोबारा करेंगे, ये दोनों फाइंड करेंगे और लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि G is the inverse of F, G F का इनवर्स है। I hope the method is clear। एक मेथड तो ये है कि आप G फंक्शन एज्यूम कर दीजिए जो हमने फर्स्ट लिखा, तो बाय द डेफिनेशन बस हमको ये दोनों चीजें फाइंड करनी है और लिख देना है कि G F का इनवर्स है। और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है इज इट इनवर्टिबल, ये इन्वर्टिबल है, इसे भी आप चेक करिए, तो हम पहले 1 1 और 2 दिखाएंगे, फिर हमको जो x की वैल्यू मिलेगी वहां से g फंक्शन एज्यूम करेंगे, देन फॉरवर्ड ऑफ दिखाएंगे। ये दिखाने जरूरी है, इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए ये दोनों बातें दिखाना जरूरी है। सिर्फ 1 1 और 2 से ये पता चलेगा कि वो इन्वर्टिबल है, इन्वर्स नहीं मिलेगा, सिर्फ ये पता चलेगा कि वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्स प्रूफ फाइंड करने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तो ये g फंक्शन इस f का इन्वर्स हो जाएगा। ओके
नाउ टेक थ्योरम 1. What is theorem 1? Theorem 1 says if f such that x to y, f such that x to y, g such that y to z, g such that y to z, and h such that z to s. Important theorem है, क्वेश्चंस काम आएगी. z to s are functions, then h of g of f is equal to h of g of f. हम किसी भी तरीके से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करें, दोनों बातें आपस में इक्वल आएंगी. पहले हम g और f का कंपोजिशन कर लें, देन h को कंबाइन करें. दैट इज कंबाइनिंग ऑफ फंक्शंस, कंबाइनिंग ऑफ थ्री फंक्शंस. हियर इट इज कंबाइनिंग ऑफ थ्री फंक्शन. तो पहले हम g और f को कंबाइन करें, फिर h को कंबाइन करें, और पहले हम h और g को कंबाइन करें, फिर f को कंबाइन करें. ऑलवेज द वैल्यू इज सेम, always the value is same. That is true for 3 functions, 4 functions, 5 functions, up to n functions. Combining of functions is always same. So take left hand side, that is h of g of f. h of take a member x, फंक्शन f के लिए एक मेंबर x ले लेते हैं. सेट, फर्स्ट सेट में x सेट में एक मेंबर है x. अप्लाई दिस फंक्शन ऑन दिस मेंबर. इस बात को समझिएगा, इस फंक्शन को हम इस मेंबर पे अप्लाई करना है. और ये मेंबर ये कहाँ है? x जो है इस x सेट के अंदर है, इसका एक मेंबर है. फॉर एवरी x लिख देते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट x, वो सेट x को बिलोंग कर रहा है. देन h of g of fx, that is g of h of g of fx. ये वैल्यू क्या मिल गई? h of g of fx. इस x मेंबर पे जो हमने इसको अप्लाई कर दिया. अगेन h of g of fx का मतलब, अब g मेंबर किस पर, g फंक्शन किस पर अप्लाई हो रहा है? इस fx पे अप्लाई हो रहा है. Now this g will apply on fx. So h of g of fx, जो भी इस fx की वैल्यू मिलेगी उस पर हमें g फंक्शन अप्लाई करना है. तो g of fx. अब ये h फंक्शन किस पे अप्लाई होगा? h फंक्शन इस पूरी वैल्यू पे अप्लाई हो जाएगा. सो h of g of fx. Now we take a right hand side, h of g of fx, h of g of f. We take a value on x, take a function on x, and x is in set x. So it is h of g of fx, and it is h of g of fx, and that is h of g of fx, and again it is h of g of fx. So left hand side and right hand side both are same. Both are same. It means whether you apply first find g of f, then h of g of f, or you find h of g then of f. In both the case we find same answer because we take a member x. x एक मेंबर हमने यहाँ लिया, इसको एक्सप्लेन करने किया क्या. x एक मेंबर लिया, x पे पहले हमने f फंक्शन लगाया, ठीक. फिर उस f जो fx की वैल्यू मिली उस पे हमने g फंक्शन लगा दिया, एक वैल्यू मिल गई, फिर उसमें हमने h फंक्शन लगा दिया.
यहाँ पे हमने क्या किया, पहले एफ पे एक्स फंक्शन लगाया, फिर उस पूरे पर एच ओ जी लगाया। अब एच ओ जी उस पे लगाने का मतलब क्या है, एच ओ जी लगाने का मतलब है कि हम पहले जी फंक्शन उस पे लगाएं और फिर एच फंक्शन उस पे लगाएं, और वो सिमिलरली वही बात आएगी जो लेफ्ट हैंड साइड से मिली है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। आई होप इट इज क्लियर। नाउ थ्योरम 2। Second term, theorem 2 says let f such that x to y, f such that x to y and g such that y to z and g such that y to z be two invertible functions। थ्योरम कह रही है कि ये दोनों इन्वर्टिबल है। अच्छा, यहाँ पे g जो है f का इनवर्स नहीं है, क्योंकि f जो है x to y का है, मतलब इसका इनवर्स f इनवर्स होगा कुछ, वो g नहीं है इस बार। और g एक फंक्शन है y to z, और ये भी इन्वर्टिबल है तो इसका भी एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसे हम g इनवर्स बोलेंगे। देन गोफ इज आल्सो इन्वर्टिबल, देन GOF is also इन्वर्टिबल। गॉफ क्या है, गॉफ भी इन्वर्टिबल है। विथ इसका इनवर्स होगा क्या, इसका इनवर्स होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये बात हमें प्रूव करनी है कि एफ जी और एफ का इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। वो थ्योरम समझ लीजिए। थ्योरम का मतलब क्या है, थ्योरम का मतलब है कि एफ एक फंक्शन है, वो एक्स से वाई में है, ठीक है। जी एक फंक्शन है, वो y से z में है। दोनों ही इन्वर्टिबल फंक्शन है, f और g दोनों ही इन्वर्टिबल फंक्शन है। इट मींस f इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, g इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। देन GOF इज आल्सो इन्वर्टिबल। वो कह रहा है GOF भी इन्वर्टिबल होगा, और उसका इनवर्स क्या होगा, उसका इनवर्स होगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। GOF का इनवर्स f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। अच्छा, इसके लिए प्रूफ करने का मेथड क्या यूज करेंगे, क्या अप्रोच यूज करेंगे। अभी तक हम यूज कर रहे थे, सपोज सेट x है, सेट y है, यहाँ पे फंक्शन f लगा दिया हमने। वापस आते थे तो f फंक्शन इज x to y। तो जब हम g फंक्शन लेते थे इसका इनवर्स और बोलते थे कि वो कहाँ होगा, वो होगा y से x में, मतलब हमको उल्टा आना पड़ेगा। इसी को हम g फंक्शन बोल देते थे या f इनवर्स बोल देते थे, g फंक्शन सपोज बोल देते थे। g फंक्शन क्या है, y to x। इस केस में GOF क्या मिलता था हमें, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन फर्स्ट सेट, ऑन फर्स्ट सेट। और फॉग क्या मिलता था, फॉग मिलता था आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेकंड सेट। ये थ्योरम थी, इस थ्योरम का यूज करके हम इनवर्स फाइंड करते थे। अब ये क्या है ना, इसका इनवर्स ये है, तो आप इसको सपोज पूरे को एक फंक्शन मान लीजिए, ये एक है और ये पूरा एक है। तो इन दोनों को अगर हम ऑपरेशन लेंगे, क्या ऑपरेशन है, GOF ऑपरेशन F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। ये फर्स्ट फंक्शन है, सेम सिमिलर यही बात कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन, ये क्या मिलेगा हमें, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन z मिलेगा। या फिर अगर हम ऐसा लिख लें, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ GOF, तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x। अगर सिर्फ इतनी दो बातें हम प्रूफ कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये GOF इसका इनवर्स है या ये इसका इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये बात लाई कहां से, ये बात हम इस मेथड से लाए जो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि फंक्शन एक x से y में है, फंक्शन f है, उसका इनवर्स हम उसको g बोल रहे हैं, जो कहां होगा, y से x में होगा। रिवर्स फंक्शनिंग करेंगे। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, रिवर्स फंक्शनिंग। अच्छा एक बात और, जितने भी फंक्शंस हैं सबके इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर फंक्शन 1 1 1 2 नहीं है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑल द फंक्शंस आर नॉट इन्वर्टिबल।
कुछ ही फंक्शंस इनवर्टिबल होते हैं, उनको हम चेक करेंगे कि वेदर दे आर इनवर्टिबल और नॉट। अगर इनवर्टिबल है तो इनवर्स फाइंड करेंगे। तो अगर ये फंक्शन इनवर्टिबल था तो g एक एग्जिस्ट कर रहा था जो कहाँ था, y से x में था। कंडीशन हमने क्या ली थी, गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x। गॉफ का मतलब कि g जो दूसरा इनवर्स मिल रहा है उस पर हम f का ऑपरेशन लगा दें तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x। ठीक है, ये हम फॉक कर दें, फर्स्ट फंक्शन जो f से जा रहा था ऑपरेशन उसका इनवर्स, तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y। सेम काम हमने यहाँ किया है, ये एक फंक्शन है पूरा और ये दूसरा पूरा फंक्शन है, इसका इनवर्स क्या है, सामने दिया हुआ है। तो दिस फंक्शन ऑपरेशन दिस फंक्शन क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन फर्स्ट वन दैट इज x, एंड दिस फंक्शन ऑपरेशन दिस फंक्शन इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन जो हमको लास्ट में मिला है सेकंड z पे। इसमें से कोई भी एक बात प्रूफ कर दें या दोनों प्रूफ कर दें तो हम बोल देंगे कि ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इनवर्स है। तो ये अप्रोच हम यूज करेंगे, वी यूज, इफ वी prove this one we can say that g of f inverse is equal to f inverse of g inverse. So take this one, left hand side, f inverse of g inverse of g inverse, f inverse of g inverse of g। और इसको किसी सपोज नंबर यहाँ पे f है तो इसको x पे लगा दिया, for every x belongs to that first set, x set, for every x belongs to, x किसको बिलोंग कर रहा है, इस कैपिटल x सेट को बिलोंग कर रहा है ना। अभी फर्स्ट थ्योरम पे जाएं तो इसका मतलब क्या है, g of fx, f inverse of g inverse of g of fx। ये g इनवर्स और g को एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी फंक्शन पहले लें, किसी भी फंक्शन को पहले कंबाइन करें, किसी को भी बाद में कंबाइन करें, इससे कोई मतलब नहीं है। f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ g, इसको एक साथ कर दिया, ऑफ नाउ दिस g इनवर्स ऑफ g इज क्या, g इनवर्स ऑफ g, ये क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y। ये कैसे आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y मिलेगा, देखिए आप, ये f इनवर्स ऑफ f क्या मिलता है हमको, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y मिलता है। g जो है वो किसका है, f का इनवर्स है, तो यहाँ पे g का इनवर्स लिखा हुआ है दैट इज f ऑन g। ये बात क्या है, ये बात अगर f इसका इनवर्स है तो f ऑफ g लिखना है, f ऑफ g इज इक्वल टू i y, ये मिल जाएगा f इनवर्स ऑफ identity function on y set that is of fx, आइडेंटिटी फंक्शन, और उस पर फिर से हम फंक्शनिंग किसकी कर रहे हैं, f इनवर्स की फंक्शनिंग, और वापस इन सब की फंक्शनिंग कहाँ जा रही है, f पर जा रही है। तो f इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ f का f के साथ इनवर्स, और वो भी किस पे, x पे, इट गिव्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x। यहां से ये f इनवर्स है, so f inverse of f क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x, so that is identity function on x। so we prove f inverse of g inverse operation g of f is equal to identity function on x, hence gof inverse is equal to f inverse of g inverse। note it down। अब इसी को एक एग्जांपल से प्रूव करेंगे, समझेंगे कि ये होगा क्या है पूरे में। In the similar way we can prove also this, हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं, और we can write gof inverse is equal to f inverse of g inverse। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल समझेंगे इसको, सेट कुछ डिफाइन कर लेते हैं, लेट नोट इट डाउन, a इज इक्वल टू 1 2 3 and 4, b इज इक्वल टू 3 5 7 9, c इज इक्वल टू
7, 23, 47, 79, and F is A to B, G is B to C, and defined as fx is equal to 2x plus 1 for all x, for every x belongs to set A. G of x is equal to x square minus 2 for every x belongs to that set B. अब जो थ्योरम प्रूव करेंगे उस थ्योरम को हम इन फंक्शंस के साथ में चेक करेंगे. थ्योरम क्या प्रूव करेंगे? G O F इनवर्स इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ G. इसको चेक करेंगे. Note these. A is equal to 1, 2, 3, 4 set A. Set B is equal to 3, 5, 7, 9. Set C is equal to 7, 23, 47, 79. F A to B, G B to C. Fx और Gx डिफाइन है. तो सबसे पहले F की बात करते हैं. F की बात करें तो F है A to B. F फंक्शन कहाँ है? A से B में. Fx कैसे डिफाइन है? 2x plus 1. F of x is equal to 2x plus 1. वैल्यूज चेक करते हैं. So fx is 1, 2, 3, 4. एक x किसको बिलोंग करेंगे? सेट A को. F of 1 is equal to 2 multiplied by 1 plus 1. 3. Then f of 2 is 5. F of 3 is 7. F of 4 is 9. क्लियर? इसको वेन डायग्राम से, एरो डायग्राम से समझ लेते हैं. फंक्शन है सेट ए सेट. व्हाट इज ए? 1, 2, 3, 4. व्हाट इज बी? 3, 5, 7, 9. One to one mapping. One to one mapping. It means it is 1, 1 and on 2. 1 1 mapping है और on 2 भी है. It is 1, 1 and on 2. It means f inverse exists. So function f क्या है? f है 1,3, 2,5, 3,7, 4,9. ये f फंक्शन है. इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, आगे यूज करेंगे इसका. Since it is 1 and on 2, hence it is invertible. So what is f? F is equal to 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9. That is f. Now f inverse is also exists because it is 1, 1 and on 2. So f inverse is b to a. f inverse कहाँ होगा? B से A में होगा. F कहाँ था? A to B में था. So F inverse such that B to A. F inverse कहाँ होगा? B से A में होगा. और F inverse की वैल्यूज क्या मिलेंगी? 3,1. रिवर्स मैपिंग. रिवर्स मैपिंग अभी क्या कर रहे थे? 1 से 3 को मैप कर रहे थे. अब ये डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया, तो हम 3 से 1 को मैप करेंगे. 3, 1, 5, 2, 7, 3, 9, 4. इन्हीं नंबर्स को रिवर्स करते जाइए. 3, 1, 5, 2, 7, 3, 7, 3, then 9, 4. ये f inverse हो गया. So far we have discussed what is f function. We define it. We find inverse of f and f inverse. Now take second function g. G says that b to c. ये कहाँ है? b से c में. What is b? And defined as x square minus 2. Defined as x square minus 2.
g ऑफ एक्स। g फंक्शन कहाँ लगाएंगे? सेट बी पे लगाएंगे। सो g ऑफ 3 3 3 9 9 minus 2 7, g of 5 25 minus 2 23, g of 7 49 minus 2 47, g of 9 81 minus 2 79। ठीक, इसको एरो डायग्राम से शो करते हैं। दैट इज b, दैट इज c, फंक्शन इज g, फंक्शन क्या है? g फंक्शन है। मेंबर्स इन b 3 5 7 9, मेंबर्स इन c 7 23 47 79, 7 23 47 and 79. Now again 1 1 mapping, it is 1 1 and on 2, hence it inverse इसका भी inverse exist करेगा। inverse का मतलब reverse function g inverse। so what is g inverse? first write g, what is g? 3 7 5 23 7 47 9 79। so what is g inverse? g inverse is 7 3, उल्टा करते हैं 23 5 47 7 79 9, that is g inverse। अभी तक क्या मिल गया है? f फंक्शन पता चल गया क्या है, f इनवर्स निकाल लिया क्या है, g पता कर लिया क्या है, g इनवर्स निकाल लिया। सो क्वेश्चन थ्योरम के हिसाब से f और g दो फंक्शन है, ये a से b है और ये b से c है, दोनों ही इन्वर्टिबल है, ये भी इन्वर्टिबल है और ये भी इन्वर्टिबल है, दोनों के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों के इनवर्स हमने फाइंड कर लिए कि f इनवर्स क्या है और g इनवर्स क्या है। गुड, अब हमको क्या करना है? अब हमको गॉफ फाइंड करना है। थ्योरम के हिसाब से f और g दो फंक्शन हैं, दोनों इन्वर्टिबल हैं एंड गॉफ इज आल्सो इन्वर्टिबल, और गॉफ इन्वर्टिबल कैसे है? f इनवर्स ऑफ g इनवर्स है, तो हम गॉफ फाइंड करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ गॉफ, व्हाट इज गॉफ? गॉफ इज g of fx। व्हाट इज गॉफ? गॉफ इज g of fx। g फंक्शन कहां लग रहा है? f फंक्शन पे लग रहा है। तो g of f मींस पहले f फंक्शन होगा फिर g फंक्शन होगा। इसको एरो डायग्राम से बनाते हैं, देन नंबर्स देखते हैं। एरो डायग्राम a b c। what is set a? set a is 1 2 3 4, 1 2 3 4। what is set b? 3 5 7 9, 3 5 7 9। what is set c? 7 23 47 79। 1 to 1 mapping, here again 1 to 1 mapping, that is f function, that is g function। so from here to here, that is gauge, that is gauge। now gauge find करते हैं। so गॉफ कैसे डिफाइन है? गॉफ कहाँ है? गॉफ ए से सी में है। गॉफ कहाँ है? ए टू सी। गॉफ सच दैट ए टू सी। गॉफ क्या मिला? ए से सी में मिला। और गॉफ डिफाइन कैसे है? 1 से 7, 2 से 23, 3 से 47, 4 से 79। तो गॉफ डिफाइन कैसे है? डायरेक्ट लिख रहे हैं। गॉफ ऑफ 1 is equal to 7, गॉफ ऑफ 2 is equal to 23, गॉफ ऑफ 3 is equal to 47, गॉफ ऑफ 4 is equal to 79। क्लियर? सो 1, 7, 2, 23, 3, 47 and 4, 79। दैट इज गॉफ। ये क्या फाइंड कर लिया हमने? गॉफ फाइंड कर लिया। इसको नोट कर लेते हैं। अब इसको इक्वल किसके शो करना है? इसको इक्वल शो करना है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के।
सो अब हम फाइंड करेंगे एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, ये वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के इक्वल। सो ये क्या था, जी ओ एफ, जी ओ एफ के लिए हम क्या करते हैं, पहले एफ फंक्शन लिखते हैं फिर जी फंक्शन करते हैं, उनका ऑपरेशन लगाते हैं। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जी इनवर्स फंक्शन लेंगे और फिर हम एफ इनवर्स फंक्शन लेंगे। देखिए एफ था, एफ यहाँ पहले था, जी यहाँ बाद में था, तो जो यहाँ पहले है वो बाद में हो जाएगा, जो बाद में है वो पहले में। तो पहले जी इनवर्स, जी इनवर्स कहाँ था, अगर हम जी इनवर्स फाइंड करेंगे तो जी इनवर्स कहाँ होगा, सी टू बी। जी इनवर्स अभी हमने राइट किया था तो वो कहाँ था, सी से बी में गया था। सी सेट क्या था, 7, 23, 47, 79 और बी सेट क्या है, 3, 5, 7, 9। देखिए जी इनवर्स क्या था, जी इनवर्स जो भी हमने पहले लिखा था उसमें क्या नंबर्स लिखे थे, 7, 3, 23, 5, 47, 7, 79, 9, ये हमने जी इनवर्स में लिखा था। अब इसके साथ हमको क्या लगाना है, एफ फंक्शन लगाना है, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स क्या था, एफ इनवर्स बी से था, अगर एफ जो है ए से बी है तो एफ इनवर्स बी से ए जाएगा। और ए में नंबर्स क्या थे, 1, 2, 3, 4, ये भी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। एफ इनवर्स हमने कैसे डिफाइन किया था, एफ इनवर्स 3,1, 5,2, 7,3, 9,4। नाउ C2 वापस आ गए, C2। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एफ इनवर्स ऑफ जी, इसे हम क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। इज इट क्लियर, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स में क्या मिलेगा, 7 के साथ 1, डायरेक्ट लिख रहे हैं, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स दैट इज 7 के साथ 1, 23 के साथ 2, 47 के साथ 3, 79 के साथ 4। ये हो गया एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इस एग्जांपल के हिसाब से। यहां हमने जी ओ एफ फाइंड कर रखा था। थ्योरम सेज, थ्योरम क्या थी, थ्योरम थी जी ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, जी ओ एफ हमने फाइंड कर लिया है। अब अगर हमने जी ओ एफ फाइंड कर लिया है और जी ओ एफ भी क्या है, 17, 223, 347, 479, so GOF is 1, 1 and on 2. It is 1, 1 and on 2. जब ये 1, 1 और on 2 है, जब ये 1, 1 और on 2 है तो GOF का इनवर्स क्या हो जाएगा, ये नंबर्स बस स्विच कर दीजिए। तो GOF इनवर्स इज इक्वल टू 7, 1, 7, 1, 23, 2, 47, 3, 79, 4, 79, 4, and that is equal to f inverse of g inverse. So according to theorem, if f and g are two functions, f और g दो functions हैं, दोनों ही invertible है, दोनों ही invertible, they must be invertible। ये invertible नहीं होते तो theorem नहीं proof होती, दोनों ही invertible हैं। It means f inverse और g inverse exist कर रहा है। Then गॉफ का जो इनवर्स होगा, गॉफ पहली बात तो इन्वर्टिबल होगा, हमने इन्वर्टिबल प्रूफ किया, इन्वर्टिबल होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर गॉफ इन्वर्टिबल है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो इनवर्स होगा क्या, वो होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। गॉफ का इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। यही थ्योरम पहले हमने बाय थ्योरी प्रूफ करी, अब ये बाय एग्जांपल नोट इट डाउन। ओके, थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस एनसीईआरटी एक्सरसाइज।